Bismillahirrahmanirrahim. So in this video, we will be taking a deeper dive into some of the concepts that we very briefly introduced before. So this will include a discussion around ROC and precision recall curves, area under the curve, the equal error rate, and as it's also known as the crossover error rate. So in concepts को हम थोड़ा सा detail में देखेंगे why they are needed, when they're used, and more importantly how to interpret these graphs and these results. So इसके around discussion होगी इस video में. All of the references in this video are listed at the bottom of each slide. In addition to these references, I would like to mention one more which I have not directly used in the making of this video, but it's still a very useful reference, and that is so there is a stat quest by Josh Starmer on ROC curves. So that's also very interesting. However, it will be more useful for you once you have studied logistic regression. So the way I have created this video, it's not assuming that you know classifiers in any level of detail. So इसके अंदर मैं बहुत simple अंदाज से examples दूंगा इसकी, so that you understand the concept of these graphs without thoroughly understanding how machine learning classifiers work. So let's begin. All right, so let's begin by quickly revising some of the concepts that we have covered before. लेकिन बहुत तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि अगरचे है तो revision, लेकिन I am basically adding more details to this confusion matrix now when we are discussing it the second time. So यहाँ पर आपके सामने वही familiar दो चीजें नजर आ रही हैं. So on the top you have the gold labels. So this is your gold positive and your gold negative, and what that means is, for example, अगर ये किसी disease के बारे में हम बात कर रहे हैं, so जो कॉलम आपके पास ये गोल्ड पॉजिटिव का कॉलम नजर आ रहा है, द सम ऑफ दिस कॉलम इज एक्चुअली ऑल द सैंपल्स इन द पॉपुलेशन हु हैड द डिजीज. सो ये रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड को इंडिकेट कर रहे हैं ये दोनों कॉलम्स. ये बात बहुत गौर से अपने जहन में बिठा लीजिए. द कॉलम्स हियर आर कॉरस्पॉन्डिंग, द सम्स ऑफ द कॉलम्स आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रियलिटी ऑफ योर डेटा सेट, कि आपके डेटा सेट के अंदर सचमुच में कितनी चीजें पॉजिटिव थी, कितने गोल्ड पॉजिटिव थे. और सिमिलरली ये कॉलम, the sum of this column is corresponding with the actual samples in the population which did not have the disease. जो आपके सैंपल में वाकई जो चीज़ें नेगेटिव थी. ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपके जहन में क्लियर है, और ये इसी अंदाज से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है जिस अंदाज से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. सो द कॉलम्स हियर आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड. The predicted labels, on the other hand, the predicted positive and the predicted negative, are the outcomes of our test. So these are test dependent. So ये row जो आपको नजर आ रही है, the sum of this row is essentially all the samples that were predicted to be positive. ये वो सब हैं जो हमारे टेस्ट ने कहे हैं कि पॉजिटिव है. सिमिलरली ये रो में वो सारी चीजें हैं जो हमारे टेस्ट ने कही हैं कि ये नेगेटिव है. सो नाउ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज रोज एंड कॉलम्स गिव्स यू these four cells which show you the true positives, the true negatives, the false positives and the false negatives. ठीक है, so I hope कि इस एंगल से अब आपके जहन में क्लियर है कि किधर रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड नजर आ रही है आपके कॉलम्स में, और कहाँ पर आपके टेस्ट की आउटकम्स नजर आ रही हैं आपकी रोज में. Now let's look at some of the measures that we looked at before again, because इनको हमने यूज करना है आज की डिस्कशन के अंदर और इस वीडियो के अंदर. So the first one of these is the recall, या जिसे हम sensitivity भी कहते हैं, true positive rate भी कहते हैं, और true acceptance rate भी कहते हैं. So what is this? ये रेशो है और जिसके डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं all of the samples which were actually positive, which were gold positive. हमने कहा ना अभी कि हमारे कॉलम का सम वो चीजें हैं जो रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड को इंडिकेट कर रही है कि इस चीजें सचमुच में कितनी पॉजिटिव थी. सो दिस इज अ रेशो बिटवीन दिस एंटिटी, और हमारे न्यूमरेटर के अंदर आ रहा है यहाँ पर जो चीजें हमारे टेस्ट ने पॉजिटिव कह दी. सो ऑफ ऑल द सैंपल्स दैट वर एक्चुअली पॉजिटिव, what fraction of them were captured as positives by our test. ठीक है, ये है आपकी रिकॉल. सो इट्स अ रेशो बिटवीन जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं एंड द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. सिमिलरली जो इसके साथ हमारे पास दूसरा नंबर आएगा जो बेसिकली 1 माइनस सेंसिटिविटी या 1 माइनस रिकॉल है, दैट इज कि ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर एक्चुअली पॉजिटिव, कितनों को हमारे टेस्ट ने गलती से नेगेटिव कह दिया. सो दीज आर द फॉल्स नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव्स, या द फॉल्स नेगेटिव रेट, या फॉल्स रिजेक्शन रेट भी हम इसको कहते हैं. सो 1 माइनस सेंसिटिविटी. सो वो सारी चीज़ें जो कि असल में हमें मालूम है इनका गोल्ड लेबल पॉजिटिव था, लेकिन इनको हमारे टेस्ट ने रिजेक्ट कर दिया, फॉल्सली रिजेक्ट कर दिया या फॉल्सली नेगेटिव कह दिया. सिमिलरली जो दूसरे कॉलम को अगर आप देखें, वहां पर भी आपके पास एक सिमिलर नंबर आ रहा है जो आपका, जिसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं. सो द सेंसिटिविटी एंड द स्पेसिफिसिटी बेसिकली दे रिफर टू these two essentially
these two aspects of your test कि हमारे पॉजिटिव्स कितने रिलायबल हैं और हमारे नेगेटिव्स कितने रिलायबल हैं, हमारे टेस्ट के पॉजिटिव कितने रिलायबल हैं, टेस्ट के नेगेटिव कितने रिलायबल हैं. सो द स्पेसिफिसिटी इज सेइंग दैट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर एक्चुअली नेगेटिव, जिनका गोल्ड लेवल नेगेटिव था, हमारे टेस्ट ने उसमें से कितने कैप्चर किए. सो इट्स अ रेशियो बिटवीन आर नेगेटिव्स एंड द रियल नेगेटिव्स. ठीक है, ये स्पेसिफिसिटी है जिसको ट्रू नेगेटिव रेट या ट्रू रिजेक्शन रेट भी कहते हैं. वो चीज़ जिसको नेगेटिव कहना चाहिए था कि बीमार नहीं है, वो हमारे टेस्ट ने भी उसमें से उसको कहा नेगेटिव या नहीं कहा. और इसका ऑब्वियसली हमारे पास एक एरर वाली फॉर्म भी है, वो ये है जहाँ पे हम ये कह रहे हैं ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर एक्चुअली नेगेटिव, वो सारे लोग जिनको बीमारी नहीं थी उनमें से कितनों को हमारे टेस्ट ने गलती से कह दिया कि वो बीमार है. सो दिस इज वन माइनस स्पेसिफिसिटी या फॉल्स पॉजिटिव रेट या फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट. आप यहाँ ये देख रहे हैं कि मैंने कुछ इन एंटिटीज़ को रेड किया हुआ है, ये वो हैं जो हमारे अगले ग्राफ्स में यूज़ होनी है. सो जो एंटिटीज़ आप अपने जहन में बिठा लीजिए बिल्कुल, उसमें से एक ये है ट्रू पॉजिटिव रेट और दूसरी ये है फॉल्स पॉजिटिव रेट. इसकी बात अभी हमने काफ़ी तफसील से करनी है. अच्छा, अब अगर हम रोज़ की तरफ आ जाएं तो हमें वहाँ पर नज़र आता है ये वाली चीज़ जिसको हम प्रिसिजन कहते हैं. प्रिसिजन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसके अंदर हम देख रहे हैं ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर प्रिडिक्टेड पॉजिटिव बाय आवर टेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर प्रिडिक्टेड पॉजिटिव. यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर एक्चुअली पॉजिटिव. यहाँ पर क्या, सो रिकॉल में ये हो रहा था, प्रिसिजन में क्या हो रहा है, ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर प्रिडिक्टेड पॉजिटिव बाय आवर टेस्ट, हाउ मेनी ऑफ देम वर एक्चुअली पॉजिटिव. यानी उनमें से कितने मैं आपको जो चीज़ें प्रेडिक्ट करके दे रहा हूँ उनमें से मैं कितना सही हूँ. ये है प्रिसिजन का एंगल. रिकॉल का एंगल ये वो सारी चीज़ें जो कि सही थी, वो सारी चीज़ें जो कि ट्रू थी, उनमें से आपने कितनों को ट्रू कहा है. ठीक है, तो रियलिटी को कितना कैप्चर किया है ये रिकॉल में आता है. टेस्ट कितना रिलायबल है और वो कितना प्रिसाइज है, कितना एक्यूरेट है जो चीज़ वो आपको रिटर्न कर रहा है उसमें, ये आपकी प्रिसिजन में आता है. ठीक है, सो दिस ये रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड के साथ दूसरे अंदाज में इंटरेक्ट कर रहा है, उस अंदाज में नहीं कर रहा है जिस अंदाज में ये कर रहा था. सिमिलरली इसका नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि मेरे टेस्ट ने नेगेटिव कही हैं, कितनी सचमुच में नेगेटिव थी, यानी कितनी रियल वर्ल्ड के साथ जो है वो मैच कर रही थी. तो यहाँ रियल वर्ल्ड कहाँ पे आ रही है, आपके न्यूमरेटर्स के अंदर, जबकि यहाँ पर रियल वर्ल्ड कहाँ पर आ रही है, यहाँ पे है ही रेशो अगेंस्ट द रियल वर्ल्ड. ठीक है, इसकी कुछ रिप्रिकॉशंस हैं जो अभी हम देखना शुरू करेंगे, लेकिन आज के वीडियो के एंड के करीब जाकर इसकी पूरी तफसील में हम जा सकेंगे. ऑल राइट, सो योर सेंसिटिविटी, your specificity, मैं अब ये let me just clean the board and let me mark these out for you ताकि आपके जहन में कोई confusion ना रहे. So let me just mark these out for you. So your sensitivity, your specificity, your false negative rate and your false positive rate are not influenced by real world data imbalances. अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम है और इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, इस पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये चीज़ें रियल वर्ल्ड में जब इम्बैलेंस डेटा आता है तो उससे इम्पैक्ट नहीं होती हैं. अच्छा, रियल वर्ल्ड इम्बैलेंस डेटा कैसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी रेयर डिजीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो लाखों में से कोई 10 लोगों को है. नाउ जो भी डेटा सेट मैं इकट्ठा करूंगा इस डिजीज़ के बारे में वो इम्बैलेंस्ड ही होगा. उसमें जो हमारे पॉजिटिव्स होंगे, रियल गोल्ड पॉजिटिव्स होंगे बहुत कम होंगे और गोल्ड नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा होंगे. सिमिलरली आप मिस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं या आप स्पैम ईमेल्स पे काम करते हैं, इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर आपके पास जो डेटा आता है वो इम्बैलेंस्ड होता है, क्योंकि एंड दिस इज़ फॉर्चुनेट कि रियल वर्ल्ड में उतनी स्पैम नहीं है जितनी की रियल ईमेल्स हैं, उतनी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी की आपके पास रिलायबल इंफॉर्मेशन है. तो रेयर इवेंट्स को पकड़ने वाले जो भी फॉर्म्स हैं उसमें हमारे पास डेटा का इम्बैलेंस आ जाता है. हम ये क्लेम कर रहे हैं कि सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, एफएनआर और एफपीआर, एसेंशली ये चीज़ें are not influenced by these real world data imbalances. These are not sensitive to these real world data imbalances. इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. So these imbalances impact the denominators. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a rare disease or a rare phenomena like a fraud email or a spam email. अच्छा, अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक टेस्ट की बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये एक रेयर डिजीज़ है और इस डिजीज़ में मुब्तला लोग टोटल जो हैं वो 10 हैं और 10,000 लोग ऐसे हैं जिनको ये डिजीज़ नहीं है. So 10 people have the disease and 10,000 do not have the disease. Now in this scenario हमारे टेस्ट ने कैसा परफॉर्म किया, इसने आधे लोगों को जो है कह दिया कि ये बीमार हैं और इसी तरह से जो नहीं बीमार थे उसमें से भी आधों को कह दिया कि वो नहीं बीमार हैं. ये कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है और अच्छा टेस्ट नहीं है जो हमने परफॉर्म किया है. नाउ लेट्स कंपेयर बेसिकली दीज मेजर्स अगेंस्ट दीज मेजर्स इन टर्म्स ऑफ दिस इम्बैलेंस डेटा एंड दीज रिजल्ट्स.
So you can see here that the sensitivity is 0.5. Why? Because sensitivity सिर्फ इस class के ऊपर focus कर रही है. It's 5 divided by 10. So it is the true positives divided by your true positives plus false negatives. So it's just focusing on this class. ये imbalance को देख ही नहीं रहा. इस टेस्ट ने इम्बैलेंस पे गौर ही नहीं किया, इसने उस सिनारियो पे ही नहीं गया जहाँ पे नेगेटिव क्लास को देखना पड़ता. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिसिटी भी निकालते तो वो भी आपके पास बिल्कुल सेम आती है. आपके पास स्पेसिफिसिटी 5000 ओवर 5000 प्लस 5000 आती है. तो 5000 ओवर 10,000 आपके पास स्पेसिफिसिटी आती जो यहाँ पे हमने नहीं निकाली हुई. तो ये दोनों मेजर्स जो हैं ये सिर्फ अपनी अपनी कॉलम के अंदर महदूद थे. जबकि अगर मैं प्रिसिजन को देखूं तो ये प्रिसिजन अपने डिनोमिनेटर के अंदर इम्बैलेंस को ला रहा है. This is where you see the class imbalance. और उस imbalance की वजह से you can see that the precision fell down quite a lot. Precision ने बहुत बड़ी hit ली है. अगर ये classes for example balanced होती और मेरे पास इन तमाम जगहों पे for example 5, 5, 5 और 5 होता तो तब आप देख सकते हैं कि हमारी sensitivity या recall तो same रहती लेकिन हमारी precision इतनी बुरी ना आती, precision बेहतर हो जाती. तो इससे अब आप ये देख सकते हैं कि आपके जो ये columns पे define हुए हुए measures हैं ये इम्बैलेंस डेटा पे सेंसिटिव नहीं है, जबकि जो आपकी रोज पे डिफाइन हुए हुए मेजर्स हैं वो आपके डेटा इम्बैलेंस पे बहुत सेंसिटिव हैं. सो योर प्रिसिजन एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आर इम्पैक्टेड बाय दीज इम्बैलेंसेस एंड आर सेंसिटिव टू देम. ये दोनों बातें जहन में बड़ी अच्छी तरह से बिठा लीजिए क्योंकि इसकी हमें बड़ी ज़रूरत पड़ेगी. और ये बात भी याद रखिए कि रियल वर्ल्ड में इम्बैलेंस डेटा सेट्स आर वेरी कॉमन. So having a balanced data set is an uncommon thing. Having an imbalanced data set is not an uncommon thing. ठीक है? I hope कि this is now clear to you. अच्छा जनाब, अब हम ज़रा थोड़ा सा गियर्स चेंज करते हैं और इस अब थोड़ा बिल्डअप करना शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक के लिए. सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जब भी कभी हमने करनी होती है तो वो यूजुअली क्लासिफिकेशन एक लेट्स अज्यूम मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो वो एक बाइनरी डिसीजन होती है और यूजुअली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो आमतौर पर बाइनरी नहीं होती, वो किसी रियल नंबर की फॉर्म में या कैटेगरीज की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ रही होती है. एंड यू हैव टू अप्लाई अ थ्रेशहोल्ड ऑन दोज स्कोर्स या नंबर्स to define your classification boundary. For example, हम पिनोकियो's नोज पे याद है ना आपको कि पिनोकियो जब झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी. नाउ दिस एग्जांपल, आई होप दिस इज नॉट ऑफेंसिव टू एनीवन, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. कुछ तो मैंने एग्जांपल लेनी थी ना तो इसलिए इसका नाक से बस इतना ही ताल्लुक है जितना पिनोकियो का नाक से ताल्लुक था. ऑल राइट, सो एज्यूम दैट लायर्स हैव लॉन्गर नोजेस. दिस इज वेयर द ऑफेंस इज कमिंग इन. सो दिस इज जस्ट एन assumption and it's in the context of पिनोकियो. ठीक है, आपने इन बुरा मानना. सो मैं ये बिल्कुल एज्यूम नहीं कर रहा कि दुनिया में सारे जो जिनकी नाक छोटी होती है वो सच्चे होते हैं और जिनकी नाक बड़ी होती है वो झूठे होते हैं. Not this claim will become racist very quickly. So let's not even go there. It's wrong at many levels. So let's focus just on Pinocchio and other dummies like Pinocchio. So assume करते हैं कि liar dummies की नाक जो है वो लंबी होती है. So liar wooden dummies की नाक लंबी होती है. Okay, ठीक है, अब तब तो ये safe है ना. So now let's develop this example. We need to अब कैसे हम इसकी बेस पे अगर क्लासीफायर बना रहे हैं कि मेरे सामने से एक wooden dummy गुजरी है और मैंने देखना है कि वो सच्ची है या झूठी है, तो मुझे कोई थ्रेशोल्ड लगानी पड़ेगी. कितनी लंबी नाक होगी तो मैं झूठा कहूंगा, कितनी छोटी नाक होगी तो मैं सच्चा कहूंगा. फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि we need to set a threshold on the nose length which is our input feature above which we classify the subject as a liar. So हम ये अगर हम लेबल yes दे रहे हैं तो yes liar है, no दे रहे हैं तो liar नहीं है. ठीक है, ये हमारा बाइनरी क्लासीफायर है. सो थ्रेशोल्डिंग प्रॉब्लम समझ में आ गई. ये चीज़ एक दफ़ा नहीं आएगी, ये चीज़ आपको बार बार नजर आएगी थ्रू आउट मशीन लर्निंग कि क्लासीफायर्स के पास स्कोर्स आते हैं एंड दे नीड टू डिफाइन अ थ्रेशोल्ड कि किस थ्रेशोल्ड से ऊपर की चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है और किससे नीचे की चीज़ों को मैंने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह से अपने थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं. सो द सेम प्रिंसिपल, अब ये जो एग्जांपल बन गई है ना, अब जरा देखिए ये रियल एग्जांपल्स पे कैसे मैप होता है. फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ अ ट्यूमर बेस्ड ऑन द साइज. क्लासिफाइंग अ ग्रोथ एज अ ट्यूमर बेस्ड ऑन द साइज. सो हमारे पास एक फोटोग्राफ है या एक मेजरमेंट है ऑफ अ ग्रोथ, एक दाना है, कोई और चीज़ है, स्किन के ऊपर किसी जगह कोई ग्रोथ है और उसके बारे में सस्पिशन जाहिर करनी है कि क्या ये ट्यूमर है या नहीं है, क्या ये कोई वरीसम चीज़ है या नहीं है. तो उस केस में उसके साइज पे लेट से आपने थ्रेशोल्ड लगा दी. इससे बड़ा होगा तो खतरनाक है, इससे छोटा होगा तो नो नीड टू वरी.
ठीक है। अब वो बहुत ही छोटा भी हो सकता है, ना नजर आने जितना छोटा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा खासे साइज तक वो नॉर्मल चीज होता है और उससे बड़े साइज के ऊपर वो डिफाइन हो जाए। तो ये डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज कहीं से हमारे पास आएगा। ब्लड प्रेशर के लेवल्स, ये जो आप मेजर करते हैं, सो ब्लड प्रेशर का आपके पास डायस्टोलिक और सिस्टोलिक आ गया, और इसकी बेस के ऊपर आपने क्लासीफाई करना है कि क्या ये पर्सन हाइपरटेंसिव है या नहीं है। नाउ आई नो कि सिंगल मेजर से ये नहीं निकल सकता, बट एज्यूम कि हम कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम्स तो आपके जहन में आ रही है ना, बहुत हाई ब्लड प्रेशर अगर होगा तो दैट मीन्स कि प्रॉब्ली द पर्सन हैज हाइपरटेंशन और राइट नाउ इज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर के लेवल विच इज अ नंबर, और उस पर आपने एक थ्रेशोल्ड लगा दी कि इससे ऊपर सिस्टोलिक डायस्टोलिक है तो ये हाइपरटेंसिव है पर्सन, ये बीमार है, नीचे है तो नहीं है। और कहीं हो सकता है हो सकता है ये बाइनरी ना हो, 3 कैटेगरीज हो, लेकिन हम फिलहाल बाइनरी क्लासिफिकेशन एज्यूम कर रहे हैं। 3 कैटेगरीज मीन लाइक बॉर्डर लाइन एंड देन हाई एंड देन लो। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, हम खाली हाई और लो कह रहे हैं, हाइपरटेंसिव यस, हाइपरटेंसिव नो। अच्छा, एक ईमेल के बारे में आपने स्पैम या नॉट स्पैम कहना है, या एक ईमेल को मिस इन्फॉर्मेशन या नॉन मिस इन्फॉर्मेशन, या मिस इन्फॉर्मेशन या रिलायबल कहना है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी स्कोर ऑफ द ईमेल। सो आपने कोई क्लासीफायर लगाया, उसने उस ईमेल को प्रोसेस किया और आपको एक नंबर दे दिया, लेट्स से बिटवीन 0 and 1, और आपसे कहा कि ये प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली जो ईमेल है ये स्पैम है या नहीं है। नाउ प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब नहीं है कि वो स्केल्ड प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं कि जी 0.5 ही पे हमेशा थ्रेशोल्ड होगा। हो सकता है कि हम सारी की सारी चीज़ें स्क्यूड लो हों या स्क्यूड हाई हों, कि हमारे स्कोर्स ऐसे आते हों कि लेट्स से 0.9 तक के स्कोर्स में सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो नॉट स्पैम है, और खाली 1 का जब स्कोर आता है तब स्पैम होती है। यानी आपके क्लासीफायर्स आप देखेंगे कि हमेशा वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो कर रहे होंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा, एक सर्च आइटम, एक कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि सर्च के बाद जो रिजल्ट आया है वो मैच है या नॉट मैच है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी स्कोर्स। तो एक तो सर्च वो होती है ना जो आपकी सादी सादी टेक्स्ट की सर्च है, एक एक चीज़ मैच कर गई तो आपने कह दिया कि मैचिंग है। लेकिन हमेशा सर्चेज ऐसी नहीं होती, सर्चेज कुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, लाइक ए सर्च ऑन एन ऑडियो सैम्पल। आपने 2 ऑडियो सैम्पल्स को मैच करके कहना है सेम है या नहीं है, जिसको हम स्पोकन टर्म डिटेक्शन कहते हैं या कीवर्ड स्पॉटिंग कहते हैं, कि एक ऑडियो मैंने आपको दी और आपने उसमें बताना है कब लेट्स से गाली का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, कब मिसाल के तौर पर कोई नामुनासिब बात की गई है, और ये मैं ऑटोमेटिक डिटेक्शन कर रहा हूँ। तो वो पूरी ऑडियो के ऊपर एक स्लाइडिंग विंडो चलाएगा और मुझे जगह जगह बता देगा यहाँ इतना स्कोर है मैचिंग का, यहाँ इतना स्कोर है। लेट्स से एक पर्टिकुलर वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ, वर्ड लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट नो मोबाइल फ़ोन, क्या इस ऑडियो में कहीं वर्ड मोबाइल फ़ोन कहा गया है या नहीं। सो एक ऑडियो उस पूरे पे स्लाइड होगी और जहाँ जहाँ ज़्यादा मैचिंग होगी मुझे वहाँ स्कोर मिल जाएगा। नाउ बेस्ड ऑन दैट स्कोर आई नीड टू डिसाइड कि किस थ्रेशोल्ड से ऊपर का स्कोर आता है तो वाकई ये वर्ड बोला गया होता है, किस थ्रेशोल्ड से नीचे का आता है तो ये वर्ड नहीं बोला गया होता है। सो अगेन थ्रेशोल्ड डिसाइडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन असल में ये है कि थ्रेशोल्ड डिसाइड करनी कैसे है, कहाँ पर लगानी है। सिमिलरली वॉइस बायोमेट्रिक्स, सो वॉइस बायोमेट्रिक्स ये है कि जो क्लेम कर रहा है स्पीकर, क्या ये वही है या नहीं। सो मैं बोल रहा हूँ और क्लेम कर रहा हूँ कि मैं आगा अली रज़ा हूँ, तो आप मेरी ऑडियो को किसी तरह से स्कोर करते हैं एक सिस्टम के थ्रू, मेरी प्रीवियस ऑडियो से मैच करते हैं जो कुछ भी करते हैं, और आप एक नंबर रिटर्न कर देते हैं कि जी इतना % चांस है कि ये वही शख्स है जो ये क्लेम कर रहा है। और नाउ आई नीड टू डिफाइन अ थ्रेशोल्ड कि कितना नंबर आए, कितना स्कोर आए तो मैंने कहना है कि ये वही है, कितने स्कोर से नीचे पे मैंने रिजेक्ट कर देना है कि ये वो नहीं है। ठीक है, आई होप द सिचुएशन इज बिकमिंग वेरी क्लियर टू यू कि थ्रेशोल्डिंग प्रॉब्लम कैसे बार बार क्लासिफिकेशन में आती है, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू सॉल्व। अच्छा, सो द क्वेश्चन इज वेयर टू प्लेस दिस कट ऑफ। ठीक है, कि कहाँ पर इस कट ऑफ को आपने लगाना है और उससे ऊपर की चीज़ों को एक्सेप्ट और उससे नीचे की चीज़ों को लेट से रिजेक्ट करना है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कैन वी एग्जॉस्टिवली ट्राई ऑल कट ऑफ्स ओवर अ बाउंडेड स्कोर। सो अगर स्कोर बाउंडेड है, यानी लेट्स से 0-1 के बीच में है या 0 से 100 के बीच में है, बाउंडेड स्कोर है, तो क्या हम सारी एग्जॉस्टिवली सारी कट ऑफ्स को टेस्ट कर सकते हैं। एंड दिस सारी कहने का मतलब ये नहीं कि यू आर टेस्टिंग इन्फिनिट कट ऑफ्स, वी आर सेइंग विद सम ग्रैनुलैरिटी। लेट्स से 0 से 100 के बीच में है तो आपने 0 1 2 3 4 5 6 पे 100 कट ऑफ्स लगा के ट्राई कर ली। सिमिलरली आपने अगर 0 से 1 के बीच में है तो लेट्स से 0 0.1 0.2 0.3 0.4 अप टू 0.9 तक आपने सारी कट ऑफ से लेट्स से इवन 1 को भी शामिल करके सारी कट ऑफ ट्राई कर ली। सो दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी आर सेइंग एग्जॉस्टिवली सर्चिंग फॉर अ कट ऑफ। सो यस वी कैन, बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू वी ट्रैक। सो जब हम सारी कट ऑफ्स लगा रहे हैं और तो अब हम करें क्या, ये कट ऑफ लगाने के बाद कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ये हमें कैसे पता लगे। यानी गोल्ड लेबल्स तो है ना कि पिनोकियो वाले केस में कौन डमी सचमुच लायर थी और कौन नहीं थी, और नोज की लेंथ है हमारे पास। सिमिलरली ट्यूमर के केस में या ग्रोथ के केस में या ब्लड प्रेशर के केस में या स्पैम नॉट स्पैम के केस में आपके पास गोल्ड लेबल्स थे। सो नाउ यू अप्लाई अ थ्रेशोल्ड, योर टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं और अब आप उन रिजल्ट्स के बेस पे प्रिसीजन रिकॉल भी निकाल सकते हैं।
आप उन टेस्ट रिजल्ट्स की बेस पे ये फॉल्स एक्सेप्टेंसेज और रिजेक्शंस भी निकाल सकते हैं, ये ट्रू पॉजिटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स भी निकाल सकते हैं। सो इनमें से कुछ किसी भी चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि जब ये चीज़ें इंप्रूव होंगी तो वो अच्छी कट ऑफ है। आई होप दिस इज क्लियर। सो अगली स्लाइड में हम बेसिकली इसकी एक थॉरो एग्जाम्पल करेंगे, बट बिफोर दैट इट शुड बी absolutely clear in your head what we are trying to do. What we are trying to do is you have an input feature or features जिसकी बेस पे आपको आपका क्लासीफायर एक स्कोर दे रहा है। उस स्कोर की बेस के ऊपर आपने क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन डिसीजन करना है कि ये क्लास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके लिए आपने स्कोर पे कोई थ्रेशोल्ड लगानी है। इससे ऊपर का स्कोर है तो ये पॉजिटिव है, नीचे का है तो नेगेटिव है। ठीक है, क्लास पॉजिटिव है या क्लास नेगेटिव है। तो अब वो थ्रेशोल्ड ढूंढने के लिए हम कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि हम सारी की सारी पॉसिबल थ्रेशोल्ड्स देख लें या बहुत सारी थ्रेशोल्ड्स देख लें और देखें कब हमारी लेट्स से प्रिसिजन बहुत अच्छी होती है और बेस्ट होती है, या रिकॉल बेस्ट होती है, या फॉल्स एक्सेप्टेंसेस कम होती हैं, या फॉल्स रिजेक्शंस कम होती हैं, या ट्रू पॉजिटिव्स हाई होते हैं, या फॉल्स पॉजिटिव्स जो है हमारे लो होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब हम ये देखने लगे हैं कि ये काम हम कर कैसे सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट विल लीड इनटू द डिस्कशन ऑफ द आरओसी कर्व्स एंड द प्रिसिजन रिकॉल कर्व्स। So yes, say hello to your ROC curves. अब हम उसकी बात शुरू करते हैं। So the term ROC stands for Receiver Operating Characteristic. It's an odd term, I know. बाकी terms का मतलब किसी का नाम AUC means area under the curve, and EER means equal error rate, और ROC means this strange thing, our Receiver Operating Characteristic. Like it's just like saying कि इसका नाम अशरफ होता. The name is this because it has a history, और अभी हम quickly उसकी बात करते हैं कि वो history क्या है. But let's first quickly look at what it is. So the ROC is essentially a graphical plot that illustrates the diagnostic ability of a binary classifier as its discrimination threshold is varied. So ROC ग्राफ से ना हम दो चीजें निकालेंगे। एक जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि फॉर अ गिवन क्लासिफायर जो आपको कुछ स्कोर्स दे रहा है, बेस्ट थ्रेशोल्ड कहाँ पे है उन स्कोर्स की बेस पे जो आपकी दो क्लासेस के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सके। एक ही है इसका फायदा, ठीक है, इसको साइड पे रखें। दूसरा इसका फायदा ये है कि यू कैन एक्चुअली कंपेयर मल्टीपल क्लासिफायर्स यूजिंग देयर ROC ग्राफ्स। कि आपने लेट्स से एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और लेट्स से एक रैंडम फॉरेस्ट है, दोनों के आपने ROC कर्व बना लिए, वो इंडिविजुअल कर्व्स आपको बता रहे हैं कि उनकी बेस्ट थ्रेशोल्ड कहाँ लग सकती है, लेकिन साथ साथ इससे ये भी तो पता लग रहा है ना कि दोनों की स्कोरिंग कितनी अच्छी थी जिससे बेहतर थ्रेशोल्ड्स आपको मिल सकें। So these graphs can also be used, and as we'll see, we will use them for this. These can be used to actually compare across your classifiers and find out better classifiers amongst the classifiers that you're trying out. ठीक है, तो इसके ये दो फायदे हैं हमारे पास ROC graphs के। अच्छा जी, मूविंग ऑन। सो इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि 1941 के बाद इन द वर्ल्ड वॉर, जिस वक्त पर्ल हार्बर का वाकया हो गया था, उसके बाद जो रेडार ऑपरेटर्स थे जिनका काम ये था कि उन्होंने बताना है कि एनिमी एयरक्राफ्ट अप्रोच कर रहा है। सो उन्होंने एक रेडार पे देखा, ब्लिप देखा, पता लगा कि ये सचमुच में एनिमी एयरक्राफ्ट है या कोई और चीज़ है, फॉल्स अलार्म है। तो इस केस में दे वर गिवन द टास्क कि उन्होंने वो सारे के सारी चीज़ों को मार्क करना है कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ आ रही थी, रेडार पर ब्लिप था, उनके ख्याल में ये एनिमी एयरक्राफ्ट था, जापानीज एयरक्राफ्ट था। उन्होंने कहा कि जी ये मेरा टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट है, मेरे ख्याल में ये एनिमी एयरक्राफ्ट है। उसके बाद वो एयरक्राफ्ट आया, बम्बार्टमेंट करके निकल गया, तो इसका मतलब है वो वाकई एनिमी एयरक्राफ्ट था, दैट मीन्स कि ये ट्रू पॉजिटिव था। अगर वो कोई और चीज़ थी जो उड़ती हुई जा रही थी वहाँ से, या अपना कोई एयरक्राफ्ट था या कुछ और था, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स पॉजिटिव था, फॉल्स अलार्म था। एंड सिमिलरली यू कैन फिगर आउट द रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स के आपके ख्याल में वो एनिमी नहीं था और वो कंपार्टमेंट करके निकल गया, दैट मीन्स अ फॉल्स नेगेटिव। आपके ख्याल में वो एनिमी नहीं था और वो वाकई एनिमी नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू नेगेटिव था आपका। ठीक है, तो ये इस तरह से दे वर गिवन द टास्क ऑफ क्रिएटिंग दीज मेट्रिसेस एंड फिगरिंग आउट दीज ग्राफ्स फॉर देयर परफॉर्मेंस, कि वो किस पॉइंट के ऊपर कितना सेंसिटिव अपने इक्विपमेंट को रखें और कितना खुद अपनी जजमेंट को थ्रेशोल्ड कहाँ पर करें इन ऑर्डर टू डिटेक्ट दीज एनिमी एयरक्राफ्ट। सो यहाँ से ये नाम रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक आता है, ROC आता है, ये वहाँ से यूज़ होना ये शुरू हुए थे। So in terms of what it is, it's basically a plot between the true positive rate and the false positive rate. अच्छा, अब यहाँ पर आपको जब बने हुए मिलेंगे तो अक्सर जो इसके एक्सीज हैं उसमें एक पे लिखा होगा सेंसिटिविटी यानी रिकॉल और दूसरे पे 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। आई फाइंड इट हार्ड टू विजुअलाइज, मतलब जब मैं खुद कभी करने बैठता हूँ ना, एक तो पहले जहन में लाना पड़ता है अच्छा सेंसिटिविटी क्या थी। अच्छा, सेंसिटिविटी थी मेरे ट्रू पॉजिटिव्स अमंगस्ट ऑल पॉजिटिव्स, और स्पेसिफिसिटी क्या थी मेरे ट्रू नेगेटिव्स अमंगस्ट ऑल नेगेटिव्स। लेकिन फिर ये तो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी है, तो जैसे लाइक किसी की गर्दन पकड़ के आगे पीछे झटके देना कि फिर ये सोचो फिर ये सोचो। बहुत बेहतर है कि आप ये दो ब्लू चीजें याद रख लें। ROC is a plot between true positive rate and false positive rate, यानी
कितनी ट्रू पॉजिटिव रेट क्या है ऑफ ऑल द एक्चुअल पॉजिटिव्स मैंने कितने पकड़ लिए इन्हें रिकॉल, एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है ऑफ ऑल द नेगेटिव्स मैंने कितनों को फॉल्सली पॉजिटिव कह दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक गलती और एक सही के बीच में ग्राफ है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर होना शुरू होगा कि ग्राफ क्या है, और फिर हम उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट्स मेड बिटवीन दीज टू नंबर्स, द ट्रू पॉजिटिव रेट एंड द फॉल्स पॉजिटिव रेट। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पर आप फोकस करें सिर्फ इस ब्लू एरिया के ऊपर, ब्लू पर्पल व्हाटएवर इट इज, आप सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपके पास हाइट है एक इंडिविजुअल की इन इंचेस, सो 12 इंचेस, 82 इंचेस, 18 इंचेस, 60 इंचेस, लाइक 5 फीट, 72 इंचेस, आई थिंक दिस इज 6 फीट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन यू हैव द आउटपुट स्कोर। आपका गोल क्या है इस क्लासीफायर का? गोल ये है कि इसने हाइट की बेस पे ये कहना है कि एडल्ट है या चाइल्ड है। ठीक है, मैं बिल्कुल एक बड़ी जेनेरिक सी प्रॉब्लम ले रहा हूँ, मैं डिफाइन भी नहीं कर रहा एडल्ट और चाइल्ड में क्या फ़र्क है। फ़र्ज़ कर दीजिए कि हम कहते हैं कि जी चाइल्ड की एज 12 साल तक है और 12 साल से ऊपर का एडल्ट है, या 18 साल तक है, 18 साल से ऊपर का एडल्ट है, व्हाटएवर, लाइक इट डजंट मैटर। सिर्फ मकसद ये है कि मैं एक थ्रेशोल्डिंग की प्रॉब्लम आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये कुछ भी हो सकता था, ये साइज ऑफ अ ग्रोथ और उसकी बेस के ऊपर आउटपुट स्कोर, एंड देन गोल्ड लेवल ऑफ अ ट्यूमर एंड नॉट ट्यूमर भी हो सकता था, ये एक ईमेल का स्कोर भी हो सकता था जिसकी बेस पे आप उसको स्पैम नॉट स्पैम कह रहे हैं। सो द एग्जांपल इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट, द प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट. So you have an input which is a real number. In this case, it's basically an integer. It's a positive integer between two bounds. जाहिर है height 0 नहीं हो सकती और height जो है वो बहुत बड़ी नहीं हो सकती. So it's a bounded number. And then you have an output score probability. फर्ज कीजिए कि किसी क्लासीफायर ने आपको probability दे दी है कि जी इसके ख्याल में, क्लासीफायर के ख्याल में इतनी probability है कि ये adult होगा। एंड देन गोल्ड लेबल हमारे पास मौजूद हैं कि वो एडल्ट था या नहीं था, बाय वट एवर डेफिनेशन वी आर डिफाइनिंग एन एडल्ट। सो नॉट एन एडल्ट, यस एडल्ट, नॉट एन एडल्ट, यस एडल्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो है ना वो हमें वो भी नज़र आ रहा है कि अगर हम रफली ये देखें कि यहाँ पर हाइट जो है जब 55 तक आ जाती है और 48, ये दो केसेस एक दूसरे के बहुत करीब हैं। यहाँ पे छोटी हाइट वाला जो है वो एडल्ट है और जो बड़ी हाइट वाला है वो नहीं है। सो इट्स लाइक अ वेरी टॉल चाइल्ड एंड वर्सेस अ वेरी स्मॉल एडल्ट। सो ये कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि हमें क्लीन जो है थ्रेशोल्ड नहीं लगाने देंगी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। अगर आप अपने आप को इस पर कन्विंस करना चाहते हैं तो बेशक इन सारे नंबर्स को एक ग्राफ पे प्लॉट करें और आपको समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि क्लीन थ्रेशोल्डिंग नहीं आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि 0.5 के ऊपर आप लाइन लगा दें तो सारी की सारी चीज़ें सही क्लासीफाई हो जाएंगी, उसमें भी कुछ ना कुछ आपके पास फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स रहेंगे। अच्छा, अब हम, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई कि क्लासीफायर से करना क्या चाहते हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट का स्कोर मिल रहा है, अब आप थ्रेशोल्ड ढूंढना चाहते हैं कि इस आउटपुट पे क्या लगाएं जिससे हम जितना करीब आ सकें इन गोल्ड लेवल्स के आ जाएं। ठीक है, ये हमारा गोल है। अब ये ग्रीन वाले एरिया की तरफ आ जाएं इस ग्राफ के। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने ये 0.1 से लेकर 1.0 तक सारी थ्रेशोल्ड्स ट्राई की हुई। So for each threshold मैं कर सिर्फ ये रहा हूँ कि when the threshold is 0.1, that means कि अगर the score is greater than 0.1, then I say कि adult yes, अगर ये नहीं true तो then मैं ये कहूँगा कि adult no. So आप ये देख सकते हैं कि 0.1 की threshold के ऊपर इसने हर चीज़ को adult कह दिया। So and you can also see कि by comparing this against this you can define कि जी ये false positive है, ये आपका true positive है, ये false positive है, true positive है, true positive है, false positive है, and so on and so forth. ठीक है, so आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ सिर्फ true positive और false positive ही आ रहे हैं क्योंकि negative तो कुछ हो ही नहीं रहा, threshold ही इतनी low है कि आप हर एक को adult कह रहे हैं। By the way, you could have also done it for a threshold of 0. वो मैंने नहीं किया, आप वो भी कर सकते थे, वो I just started with 0.1. All right, अब हमने थ्रेशोल्ड बढ़ाई 0.2 की, सिमिलरली सबको कंपेयर किया 0.2 से और उसकी बेस के ऊपर येस एडल्ट नो एडल्ट के लेबल्स लगा दिए और उसके लिए हमने ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव और सब निकाल लिए। सिमिलरली 0.3 0.4 अप टू यहाँ 1.0 पे जब पहुंचे तो द थ्रेशोल्ड इज सो हाई कि ये किसी को भी इसने एडल्ट नहीं कहा, इसने सबको चिल्ड्रन कह दिया। सो यू जस्ट हैव द ट्रू नेगेटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स, यू डोंट हैव एनी पॉजिटिव्स हियर क्योंकि कोई पॉजिटिव आ ही नहीं रहा इस थ्रेशोल्ड की वजह से। सो नाउ यू हैव एग्जॉस्टिवली गॉन थ्रू ऑल थ्रेशोल्ड्स जो कि इस स्कोर की रेंजेस के बीच में आपको मिल सकती थी। ये रेंज बाय द वे हमने 0 से 1 डिफाइन कर दी थी, वरना आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे मैक्स लेते और मिन लेते और उसके बीच में रेंज डिफाइन कर लेते। सो ये वो सारे चीज़ें हैं जो कि प्रोसीजरल डिटेल्स हैं कि जब आप ये इंप्लीमेंट करते हैं तो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नाउ फॉर ईच ऑफ दीज थ्रेशोल्ड्स
आई एम डिफाइनिंग अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और मैं पूरी मैट्रिक्स यहाँ नहीं बनाना चाह रहा था, तो मैंने इसको ये लीनियर बना दिया. सो ये ट्रू पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव्स, ट्रू नेगेटिव्स. सो बजाय इसको यूं बनाने के मैंने इसको पहले बना दिया और इस वाले हिस्से को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया. ठीक है, इस तरह से मैंने इसको बना दिया. सो होपफुली दिस विल बी क्लियर टू यू. बाय द वे, वीडियो पॉज करके यू कैन ऑलवेज कन्विंस योर सेल्व्स कि जो चीज़ हो रही है वो आपको समझ में आ रही है. दीज आर सो सिंपल थिंग्स कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाह रहा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एंड विच इज़ कॉन्ट्री टू वॉट वी ऑल वांट. अच्छा जनाब, सो अब आपके पास ये कन्फ्यूजन मैट्रिसेस आ गई हैं इन सारी की सारी थ्रेशोल्ड्स के लिए. सो वन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फॉर ईच थ्रेशोल्ड आपके पास आ गई है. बेस्ड ऑन दीज कन्फ्यूजन मैट्रिसेस वी कैन कैलकुलेट द फॉल्स पॉजिटिव रेट, we can calculate the true positive rate, and we can calculate the precision. मैंने तीन चीज़ें क्यों निकाली हैं? बिकॉज इन तीन की मुझे आगे ज़रूरत है. फिलहाल मैं अभी इन दो को यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ फॉल्स पॉजिटिव रेट एंड ट्रू पॉजिटिव रेट. फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है? आपके पॉजिटिव्स जो आ रहे हैं डिवाइडेड बाय ऑल नेगेटिव्स. ठीक है, एंड सिमिलरली योर सेंसिटिविटी या ट्रू पॉजिटिव रेट क्या है? आपके जो पॉजिटिव्स आ रहे हैं टेस्ट के डिवाइडेड बाय ऑल पॉजिटिव्स. ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप देखें, अब हम इन दोनों को प्लॉट कर सकते हैं अगेंस्ट ईच अदर. So here you have on the horizontal axis you have the false positive rate, and on the vertical axis you have the true positive rate. And basically here you have a plot of the FPR versus TPR. और यहाँ आप ये देख सकते हैं, for example ये वो point है where your false positive rate is 1 and your true positive rate is also 1. So ये आपको इस जगह का plot मिल रहा है. And then your false positive rate is 0.6 and your true positive rate is again 1. तो ये आपको ये वाला मिल रहा है. सो ये हम प्लॉट करते चले गए यहाँ तक कि हम इस पॉइंट पे पहुंच गए जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं यहाँ. बाय द वे, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 10 की जगह 8 डॉट्स नजर आएंगे, बिकॉज देर आर फ्यू डॉट्स विच आर बेसिकली प्लेस्ड ऑन द सेम पोजीशन. दैट्स वाई वो डॉट्स आपको अलग से नजर नहीं आ रहे. ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द ROC ग्राफ. Now what does it say? What does it mean? Is it good? Is it bad? This is what we are going to discuss in more detail next. So इस slide का सिर्फ मकसद ये था कि आप एक दफ़ा पूरा process देख लें कि ROC बनता कैसे है. This is how the ROC graph is created. एक बात बस नोट कर लीजिए, हमारा गोल ये है कि true positive rate जितना high हो सके उतना हो, और false positive rate जितना low हो सके उतना हो. That means कि जो अच्छी जगह हैं इस ग्राफ की वो यहाँ कहीं हैं, और जो बुरी जगह हैं इस ग्राफ की वो यहाँ कहीं हैं. ठीक है, तो ये बात अगर आपके ज़हन में क्लियर होगी कि जब भी फॉल्स पॉजिटिव रेट हाई है तो वो बुरी जगह है, और जब भी ट्रू पॉजिटिव रेट लो है तो वो बुरी जगह है. सो लोअर एंड राइट पार्ट्स ऑफ द ग्राफ आर नॉट दैट ग्रेट. सो अपर एंड लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द ग्राफ आर द वंस दैट वी आर लुकिंग फॉर. इतनी बात जहन में रखते हुए लेट्स स्टार्ट गोइंग इनटू मोर डिटेल्स ऑफ हाउ दिस होल थिंग इज वर्किंग. अच्छा जनाब, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ROC कर्व के कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमने देखनी है. सो लुक एट दिस ग्राफ बाय द वे जो हमारे पास यहाँ बना हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. सो द बेस्ट पॉसिबल प्रिडिक्शन मेथड वुड यील्ड द पॉइंट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ग्राफ. इसका क्या मतलब है? योर ट्रू पॉजिटिव रेट यानी योर रिकॉल इज 1 एंड योर फॉल्स पॉजिटिव रेट इज 0. यानी आप कुछ भी चीज को जो नेगेटिव थी उसे पॉजिटिव नहीं कह रहे, और सारे जो रियल पॉजिटिव थे उनको आप पॉजिटिव के तौर पे मार्क कर रहे हैं. सो दिस इज द आइडियल बेस्ट, राइट? दिस इज द पोजीशन व्हिच इज 0 1, 0 फॉल्स पॉजिटिव रेट, 1 ट्रू पॉजिटिव रेट. ठीक है, सो 100% सेंसिटिविटी, नो फॉल्स नेगेटिव्स, एंड 100% स्पेसिफिसिटी, नो फॉल्स पॉजिटिव्स. ठीक हो गया जनाब? क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? बाय द वे, एक और बात भी यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये ट्रू पॉजिटिव रेट है ना, अगर मैं इसको 1 माइनस ट्रू पॉजिटिव रेट कहूँ, यानी जितना अगर एक पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है जिसका ट्रू पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल ट्रू पॉजिटिव रेट अगर यहाँ पर आता है, तो फॉल्स नेगेटिव रेट कितना होगा? ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, 1 माइनस ट्रू पॉजिटिव रेट वुड बी द फॉल्स नेगेटिव रेट. वो चीज़ें जो सचमुच में पॉजिटिव थी लेकिन आपने उसको गलती से नेगेटिव कह दिया. सो बेसिकली यहाँ पर हम दूसरा एरर भी देख रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली प्लॉट नहीं हुआ हुआ. प्लॉट हुआ हुआ ट्रू पॉजिटिव रेट, बट 1 माइनस ट्रू पॉजिटिव रेट इज फॉल्स नेगेटिव रेट. ठीक है, इस बात की भी आगे जाकर कुछ जरूरत आएगी अभी थोड़ी देर में, बल्कि इसी स्लाइड पे आएगी, लेकिन मैं उस पर फिर इसको मजीद इसकी डिटेल में चला जाऊंगा. अच्छा जनाब, सो अ रैंडम गेस वुड गिव अ पॉइंट अलोंग अ डायगोनल लाइन. ये जो आपको डायगोनल लाइन नजर आ रही है ना रैंडम क्लासीफायर की, सो दिस इज द लाइन ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पर आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट इक्वल है, या यूं कह लें फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू नेगेटिव रेट आपका इक्वल है. सो आप बेसिकली गैस ही कर रहे हैं यहाँ पर,
ये इक्वल चांसेस हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कहने के. दिस इज लाइक अ कॉइन फ्लिप. सो दिस इज नोन एज द रैंडम क्लासिफायर लाइन या रैंडम डिस्क्रिमिनेशन लाइन, लाइन ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन. मीनिंग कि ये लाइन और इससे नीचे की चीज़ें तो बिल्कुल ही बेकार हैं. ये तो ऐसा है कि इससे बेहतर था कॉइन फ्लिप कर लेते. सो कॉइन आपको यहाँ पर लाकर खड़ा कर देगा. बाइनरी क्लासिफायर में कॉइन फ्लिपिंग आपको यहाँ लाकर खड़ी कर देगी. मीनिंग कि सिर्फ वो एरिया जो इस लाइन से ऊपर एंड लेफ्ट पे है बस वो ऑफ इंटरेस्ट है. जो इससे नीचे और राइट पर है वो बेकार है. उससे अच्छा कॉइन फ्लिप करना है. ठीक है. सो दिस इज द TPR इज इक्वल टू FPR लाइन, ट्रू पॉजिटिव रेट इक्वल टू फॉल्स पॉजिटिव रेट लाइन, विच मेक्स नो सेंस. अच्छा, so the red diagonal divides the ROC space into two parts. The points above the diagonal represent good classification. The points below the line represent bad results, yeah, worse than random results. The output of a consistently bad predictor, एक और बात भी ये हम आगे जाके थोड़ी तफसील से भी देखेंगे, could simply be inverted to obtain a good predictor. For example, अगर आपके पास इस तरह का ROC ग्राफ आ गया, ये जो मैंने नीचे लाल लाइन बनाई है, अगर इस तरह का आ गया, that means कि ये उल्टा काम कर रहा है. इसको फ्लिप करके यहाँ ले जाने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज कि अपने क्लासिफायर की थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर आप पॉजिटिव कह रहे थे तो अब ऊपर नेगेटिव कहना शुरू कर दें और नीचे पॉजिटिव कहना शुरू कर दें. इन्वर्ट कर दें. इन्वर्टिंग योर अपनी थ्रेशोल्ड वहीं रखें लेकिन थ्रेशोल्ड का मान ही उलट दें. उससे ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव थी तो नेगेटिव कर दें, नीचे की चीज़ें नेगेटिव थी तो पॉजिटिव कर दें. इससे आपका ये ग्राफ जो है रेड वाला ये ब्लू वाली चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कंसिस्टेंटली गुड या कंसिस्टेंटली बैड इज फाइन, क्योंकि कंसिस्टेंटली बैड को आप रिवर्स कर सकते हैं, लेबल्स उलट सकते हैं एंड यूर फाइन. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा जनाब, आगे चलते हैं. अब जो आपको ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, ब्लू डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इसको हम इक्वल एरर डायगोनल कहते हैं. इस बात का क्या मतलब है? ये वो लाइन है जहां पर फॉल्स पॉजिटिव रेट फॉल्स नेगेटिव रेट के इक्वल है. कैसे इक्वल है? देखिए, हमने कहा था कि फॉल्स नेगेटिव रेट FNR is equal to 1 minus true positive rate. अपनी ये मैट्रिक्स याद करें. यहाँ पर आपके पास वो सारी चीज़ें थी जो रियल वर्ल्ड के पॉजिटिव्स हैं, यहाँ पर आपके पास ट्रू पॉजिटिव्स थे और यहाँ पर आपके पास फॉल्स नेगेटिव्स थे. सो ट्रू पॉजिटिव रेट क्या था? TP ओवर TP प्लस FN. और फॉल्स नेगेटिव रेट क्या था? FN ओवर TP प्लस FN. सो 1 माइनस दिस गिव्स यू दिस. ठीक है, क्लियर हो गया. तो ये बेसिकली सिर्फ मैं इसलिए एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ अगर आपको इस पे कंफ्यूजन हो रही हो कि ये कैसे निकल रहा है. ठीक है. तो इसी लाइन के ऊपर आपको ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप आ रहे हो, यानी यू प्लेस योर 0 हियर एंड योर 1 हियर, तो ये जो प्लॉट आपको नजर आएगा अलोंग दिस लाइन इज बेसिकली योर फॉल्स नेगेटिव रेट का प्लॉट. सो फॉल्स नेगेटिव रेट इज लो हियर एंड हाई हियर. सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जो मैंने ये ब्लू डॉटेड लाइन बनाई है इसके अलोंग द फॉल्स पॉजिटिव रेट इज इक्वल टू द फॉल्स नेगेटिव रेट. FPR इज इक्वल टू FNR अलोंग दिस ब्लू डॉटेड लाइन. यहाँ वीडियो पॉज करें, अपने आप को इस पर अच्छी तरह कन्विंस कर लें कि यूर कन्विंस्ड कि ये बात ऐसे ही है. ठीक है. सो अ वायबल वे टू लोकेट योर डिजायर्ड थ्रेशोल्ड, ये हम कहाँ थ्रेशोल्ड लगाएं, कुड बी अलोंग दिस लाइन. दिस इज अ गुड पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज कि इस कर्व के अंदर जब ये इसके दोनों एरर्स इक्वल हो जाते हैं, यानी उतनी ही चीज़ों को ये गलती से एक्सेप्ट कर रहा है जितनी चीज़ों को ये गलती से रिजेक्ट कर रहा है. जब आप इस नतीजे पर पहुंच जाएं तो आप इस पॉइंट पे कह सकते हैं क्योंकि दिस इज़ अ गुड कॉम्प्रोमाइज पॉइंट, उतनी ही गलतियां इसकी इधर हैं जितनी गलतियां इसकी उधर हैं. सो ये पॉइंट को हम कहते हैं इक्वल एरर. सो इक्वल एरर पॉइंट के ऊपर या इक्वल एरर रेट के ऊपर जब आप पहुंच जाते हैं तो ये यूजुअली वो थ्रेशोल्ड होती है जिसको हम आमतौर पे एक्सेप्टेबल मान लेते हैं नॉर्मल सिचुएशंस में. अच्छा, एक बात ये ज़रूर याद रहे कि ये हमेशा ट्रू नहीं होगा. ऐसा भी होगा कि आपके केस में फॉल्स एक्सेप्टेंसेस आपके लिए हो सकता है कि ज़्यादा नुकसानदेह हो. हम ये कहें जी पासवर्ड सिस्टम है, पासवर्ड अगर फॉल्सली एक्सेप्ट कर लेता है ऐसे शख्स को जो कि उस ईमेल का मालिक नहीं था तो ये बहुत बड़ा मसला है. लेकिन फॉल्स रिजेक्शन फिर भी शायद चल जाए क्योंकि अब इसने ऐसे शख्स को रिजेक्ट कर दिया है जो कि वाकई उस ईमेल का मालिक था. वो नाराज़ होगा, बुरा मानेगा, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होगी, लेकिन वो आपको ईमेल करके मसला ठीक कर लेगा. ये उससे बेहतर है कि उसका अकाउंट हैक हो जाता और कोई और उसके अकाउंट में आ जाता, या थंब लगाकर आपकी बिल्डिंग में कोई ऐसा शख्स दाखिल हो जाता जो इंट्रूडर था, वर्सेस कि आपने सही बंदे का थंब लगाने पे उसको एरर दे दिया, वो नाराज हुआ, उसने आपको बुरा भला कहा, रिपोर्ट की, आपने जो है वो कहा कि अच्छा माफ कर दो भाई, आ जाओ अंदर. तो अब इस केस में हो सकता है कि आप इक्वल एरर के में इंटरेस्टेड ना हो. इस केस में हो सकता है कि आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो. फॉल्स एक्सेप्टेंसेस को आप रिड्यूस करना चाह रहे हो, फॉल्स रिजेक्शंस को आप कहें कि चलो ये कबूल की जा सकती हैं. बट इन जनरल सिनेरियोज दिस इक्वल एरर पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस.
ठीक है, अच्छा जनाब। नाउ कुछ एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं दो क्लासीफायर्स को बेस्ड ऑन देयर आरओसी ग्राफ्स, और फ़र्ज़ कीजिए कि जी मैं एक ही पे बना देता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए एक का आरओसी ग्राफ कुछ इस किस्म का है और दूसरे का आरओसी ग्राफ जो है वो कुछ फ़र्ज़ कीजिए इस किस्म का है। तो अब इन दोनों को मैं कैसे कंपेयर करूं? मुझे क्या पता इनमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा है और कम अच्छा कौन सा है इन जनरल, अगर ये दो अलग अलग क्लासीफायर्स हैं कौन ज़्यादा बेहतर है? तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम एरिया अंडर द कर्व कहते हैं, AUC। सो एरिया अंडर द कर्व, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें और ये नीचे वाली डायग्राम को बेशक अब आप देखना शुरू कर दें, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व कितना हो सकता है। तो ये भी 0 से 1 तक जा रहा है और ये भी 0 से 1 तक जा रहा है, सो द एरिया इज 1 into 1, ये स्क्वायर बन रहा है ना, सो एरिया मैक्सिमम इसका 1 हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स द मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व। मिनिमम 0 हो सकता है फॉर एन आरओसी कर्व लाइक दिस। ये चीज़ मैं यूँ बना दूँ, इसके लिए एरिया 0 होगा, एरिया अंडर द कर्व 0 होगा। अगर ये इस तरह की एक लाइन हो तो इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो तकरीबन 0.5 होगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सादा सा स्क्वायर है तो काफ़ी चीज़ें वैसे ही इसमें समझ आ रही हैं। So a way around to comparing the two classifiers using ROC curves is to use AUC, areas under the curve. जितना ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व होगा उतना आपका ROC ग्राफ अच्छा है। ये बात पे भी अपने आप को कन्विंस कर लें, क्योंकि जो सबसे अच्छा ROC ग्राफ कौन सा था, ये वाला, इसका एरिया अंडर द कर्व कितना है 1। और सबसे बुरा कौन सा था, ये वाला, इसका एरिया अंडर द कर्व कितना है 0। और बिल्कुल दरमियान में कौन सा था, ये वाला, जिसका एरिया अंडर द कर्व 0.5 है। तो ये बड़ा अच्छा स्केल मिल गया आपको। सो योर एरिया अंडर द कर्व, जिसको हम ए प्राइम भी कहते हैं या सी स्टेटिस्टिक भी कहते हैं या कंकॉर्डेंस स्टेटिस्टिक भी कहते हैं, इट्स लार्जर इज बेटर। जितना बड़ा है, जितना 1 के करीब है, उतना अच्छा है। ठीक है, इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि योर AUC ROC कैन बी इंटरप्रेटेड एज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर्स गिवन बाय अ क्लासिफायर विल रैंक अ रैंडमली चोजन पॉजिटिव इंस्टेंस हायर देन अ रैंडमली चोजन नेगेटिव वन। सो ये इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी इसको मैप किया जा सकता है। यहाँ पर ये याद रहे, और ये बात अब लिंक होना शुरू होगी हमारी पुरानी वाली डिस्कशन से, जो हमने पुरानी से मुराद यानी जो शुरू की स्लाइड में की थी, कि for imbalanced datasets, the ROC analysis does not have any bias towards models that perform well on the minority class at the expense of the majority class. So ROC क्योंकि यूज़ कर रहा है ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट को, यानी सेंसिटिविटी और वन मैन स्पेसिफिसिटी यूज़ कर रहा है, और ये दोनों चीज़ें अभी हम देख कर आए हैं कि इंडिपेंडेंट रहती हैं रियल वर्ल्ड इम्बैलेंसेस से, क्योंकि ये विद इन द क्लास चल रही होती हैं, विद इन ऑफ ऑल द रियल पॉजिटिव्स, ऑफ ऑल द रियल नेगेटिव्स चल रही होती हैं। सो लिहाजा ये इग्नोर कर देता है, ये कोई बायस नहीं करता टुवर्ड्स मॉडल्स दैट परफॉर्म वेल ऑन द माइनॉरिटी क्लास एट द एक्सपेंस ऑफ द मेजॉरिटी क्लास, यानी ये वो इम्बैलेंस सिचुएशन को नहीं देखता जाकर के, इम्बैलेंस को बीच में नहीं रखता, ये उसको इग्नोर कर देता है। सो देयरफॉर जब जब इम्बैलेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, हम ये देखना चाहते हो इन जनरल मेरा क्लासीफायर कितना अच्छा है, चाहे पॉपुलेशन बैलेंस है या नहीं है, ROC कर्व हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी व्हिच इज क्वाइट अट्रैक्टिव व्हेन डीलिंग विद इम्बैलेंस डेटा फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। हाउएवर जब इम्बैलेंस डेटा को इस पर्सपेक्टिव से देखना है कि नहीं, एक पर्टिकुलर क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्बैलेंस है लेकिन लेट्स से पॉजिटिव क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हमारे लिए ROC कर्व इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं होगा, जो कि अभी हम देखते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए बड़ी क्विकली। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशंस नजर आ रही हैं। सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन क्लास एंड दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेकंड क्लास। लेट्स अज्यूम ये गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशंस है, और यहाँ पे आपको क्लीन सेपरेशन नजर आ रही है 0.5 के ऊपर। यहाँ पे आपका एरिया अंडर द कर्व 1 होगा इस ROC ग्राफ का। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ROC बनेगा, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पहुंच सकता है, परफेक्ट क्लासिफिकेशन, नो एरर्स, ये उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आपके डेटा के अंदर कोई स्कोर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं। बाय द वे डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं कह रहा हूँ इसको आप स्कोर्स समझ सकते हैं, स्कोर्स फॉर वन क्लास, स्कोर्स फॉर द अदर क्लास। अगर स्कोर्स ही में ओवरलैप है तो इस केस के अंदर आप ये देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैप यू हैव योर फॉल्स नेगेटिव्स एंड फॉल्स पॉजिटिव्स, देयरफॉर योर ROC कैन नॉट रीच दिस आइडियल लिमिट, वो इससे नीचे ही रहेगा। और इस केस में इसका रफली जो आपके पास है AUC जो आ रहा है वो 0.7 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा आपके जहन में ताकि क्लियर होता जाए किस किस्म की सिचुएशंस में किस किस्म के आपके AUC और ROC के रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली दोनों क्लासेस ओवरलैपिंग है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो अब इस केस में इट्स रैंडम चांस व्हिच इज डिक्टेटिंग एवरीथिंग। सो द AUC इज 0.5 एंड यू कैन सी हियर कि आपका ROC जो है वो ये स्ट्रेट लाइन है व्हिच इज द लाइन ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन। एंड फाइनली ये बिल्कुल उलट है। सो ये पॉजिटिव क्लास के लिए ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है और नेगेटिव क्लास के लिए ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। सो इसका मतलब है कि ये इससे उलट है। तो ऑल यू नीड टू डू, इसका जाहिर है ROC कर्व ये वर्स्ट वाला बनेगा जहाँ AUC 0 होगा।
हाउएवर इसको आप ठीक करने के लिए क्या करें कि आप इसको लेट्स से ये मेरी नेगेटिव क्लास थी और ये पॉजिटिव क्लास थी, और यहाँ पर ये नेगेटिव क्लास है और ये पॉजिटिव क्लास है, तो उलट दें, सारे पॉजिटिव्स को नेगेटिव कर दें और सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव कर दें। यानी थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर आप पॉजिटिव कर रहे थे तो नेगेटिव करने लगे, और नीचे नेगेटिव कर रहे थे तो पॉजिटिव करने लगे, एंड यू आर डन। तो आप कंसिस्टेंटली उलट रिजल्ट दे रहे हैं। वो शख्स जो हमेशा रात को दिन और दिन को रात कहता हो, आप उसके बारे में समझ लें कि जब वो रात कह रहा है तो उसका मतलब दिन है, और जब वो दिन कह रहा है तो उसका मतलब रात है, एंड यू आर डन। नाउ दैट्स अ परफेक्ट क्लासिफायर। उसकी सिर्फ वोकैबुलरी उलट थी, बाकी वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। यही ग्राफ आप प्रिसिजन और रिकॉल के बीच में भी बना सकते हैं। सो रिकॉल इज योर सेंसिटिविटी एंड योर प्रिसिजन, यू ऑलरेडी नो कि इसमें अब आप रियल वर्ल्ड इम्बैलेंसेस को देख रहे हैं प्रिसिजन के अंदर। अच्छा, प्रिसिजन रिकॉल कर्व में बिकॉज अब इनमें कोई एरर वाली टर्म नहीं है, तो लिहाजा इसमें ये कॉर्नर अब हमारा आइडियल कॉर्नर बन जाएगा, हाई प्रिसिजन एंड हाई रिकॉल। सो आइडियल कर्व्स अब ये वाले बन जाएंगे। अब वन का ये मतलब होगा, और अब आपके जो है वो ये रैंडम कर्व्स होंगे और यहाँ पर आपके बुरे रिजल्ट्स होंगे एंड सो ऑन। So this is your precision recall curve. It shows the trade-off between the precision and the recall for different thresholds. A high area under the curve represents both high recall and high precision, which is desirable. So high scores for both show that the classifier is returning accurate results, high precision, as well as returning a majority of all positive results, which is high recall. ठीक है जी, तो ये चीज़ समझ में आ गई। सो ये इसका कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है। अब आपको क्योंकि आरओसी पढ़ना आ गया है तो इन ग्राफ्स को पढ़ना मुश्किल नहीं। बाय द वे इसकी और भी बहुत सी किस्में हैं। अगर आप इसी लिंक पर जाएं जो मैंने नीचे दिए हुए हैं, तो आपको और भी बहुत से ग्राफ्स मिल जाएंगे जो कि रादर देन सेंसिटिविटी ऑफ 1 माइनस स्पेसिफिसिटी के सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ग्राफ, स्पेसिफिसिटी 1 माइनस सेंसिटिविटी ग्राफ्स एंड सो ऑन। इसकी बहुत सी किस्में हैं, नीड के हिसाब से हमें बदलने पड़ते हैं। मैं सबका जिक्र नहीं करूंगा बिकॉज इट विल जस्ट लीड टू मोर कन्फ्यूजन। अच्छा जनाब, अब हमने एक क्विक सी डिस्कशन करनी है इस प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे थे, और पहले मैं थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर दूं जो मैंने यहाँ यूज़ की है। सो एज्यूमिंग अ पॉजिटिव क्लास 1 and a negative class 0, y hat is our estimate of the true class label y. So true class label y है और y hat हमारा estimated label है। अब precision को मैं एक और अंदाज में लिख रहा हूँ पहली दफ़ा, ये मैंने इससे पहले यूज़ नहीं किया। Precision can be defined as the probability that y is equal to 1 given y hat is equal to 1। क्या मतलब है? y hat is equal to 1 का क्या मतलब है? मेरे पॉजिटिव्स, मेरे टेस्ट के पॉजिटिव्स। y is equal to 1 का क्या मतलब है? रियल पॉजिटिव्स। प्रिसिजन क्या थी? मैं आपको जितनी चीज़ें पॉजिटिव कह के दे रहा हूँ उसमें से कितनी चीज़ें वाकई रियल वर्ल्ड के गोल्ड लेवल पॉजिटिव्स हैं। सो बिल्कुल कि वही चीज़ लिखने का एक और अंदाज है। दिस इज लाइक द प्रोबेबिलिटी दैट माई पॉजिटिव्स आर एक्चुअल पॉजिटिव्स। ठीक हो गया? सिमिलरली इससे नीचे वाले को देखें, रिकॉल या सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? गिवन कि वो चीज़ रियल वर्ल्ड में पॉजिटिव थी, अब याद करें आपकी मैट्रिक्स के अंदर ये वाला जो कॉलम जिसको हम ऐड कर रहे थे, ये वो चीज़ें थी जो गोल्ड पॉजिटिव थी। ठीक है, सो गिवन कि गोल्ड पॉजिटिव था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने भी उसको पॉजिटिव कहा है? सो ये जो बीच में कंडीशनल की टर्म है, ये आई होप कि आपको अपने प्रीवियस कोर्सेज से आती है। आगे जाकर हमने एक आध रिवीजन लेक्चर्स में इसकी बात ऐसे ही करेंगे जैसे आपको ये नहीं आती, लेकिन आज मैं ये इसी तरह एज्यूम करके बात कर रहा हूँ जिस तरह से आपने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है, और क्योंकि स्टैट्स इसका एक प्री रेक्विजिट है तो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई होगी। सो गिवन कि वो चीज़ सचमुच में पॉजिटिव थी, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि मेरा टेस्ट भी उसको पॉजिटिव कह रहा है। स्पेसिफिसिटी क्या चीज़ है? गिवन कि वो चीज़ सचमुच में नेगेटिव थी, यानी यहाँ कहीं लाया करती थी, सॉरी let me write it correctly, यहाँ कहीं लाया करती थी, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि मेरा टेस्ट भी उसको नेगेटिव कह रहा है, मेरा टेस्ट भी उसको नेगेटिव कह रहा है। दैट्स योर स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ये सो पी वाई इज इक्वल टू 1 इज द बेस लाइन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि इन द रियल वर्ल्ड व्हाट वाज द प्रेवलेंस ऑफ दैट इवेंट, यानी उस डिजीज की क्या प्रेवलेंस थी या उस फिनोमेना की क्या प्रेवलेंस थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बीइंग 1 मीनिंग कि कितने लोग वाकई आपके डेटा सेट में बीमार थे, कितने लोग आपकी उस पॉपुलेशन सैंपल के अंदर बीमार थे। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y hat is equal to 1 is the probability that our classifier will classify a sample as positive। ये हमारे क्लासिफायर की पॉजिटिव क्लासीफाई करने की प्रोबेबिलिटी थी, और जाहिर है अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन गिव्स यू दीज इंटरसेक्शनल प्रोबेबिलिटीज व्हिच लीड टू दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अच्छा, अब हम ये देख कर आए हैं कि ROC कर्व्स विल बी द सेम रिगार्डलेस ऑफ पी वाई इज इक्वल टू 1। ये हम अभी देख कर आए हैं। आपका ROC कर्व नहीं है सेंसिटिव इस बात के ऊपर कि यहाँ कोई इम्बैलेंस पाया जाता है या नहीं पाया जाता, बिकॉज वो अपने अपने एरिया के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। आपकी सेंसिटिविटी यहाँ पर
कॉन्सेंट्रेट कर रही है, आपकी 1 माइनस स्पेसिफिसिटी यानी फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो वो खाली अपने अपने रो कॉलम को देख रहे हैं, लिहाजा उनको मसला नहीं है। वेयर एज योर द प्रिसिजन रिकॉल कर्व्स मे बी मोर यूजफुल इन प्रैक्टिस फॉर नीडल इन द हेस्टैक टाइप प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स वेयर द पॉजिटिव क्लास इज मोर इंटरेस्टिंग देन द नेगेटिव क्लास। सो अब इस किस्म की सिचुएशन, नीडल इन हेस्टैक का क्या मतलब है कि बहुत थोड़े पॉजिटिव सैंपल्स हैं आपके पास, लेकिन आप उनके बारे में बड़े फिक्रमंद हैं, जैसा कि मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्शन या जैसा कि कोई फ्रॉडुलेंट एसएमएस डिटेक्शन। इस केस में आपको बहुत थोड़े सैंपल मिलेंगे ऐसे जो वाकई फ्रॉडुलेंट होंगे। हमने एक एक्चुअल प्रोजेक्ट किया था एसएमएस, फ्रॉडुलेंट एसएमएस के ऊपर, और वहाँ पर कुछ हमें 70-80 सैंपल मिले थे जाकर फ्रॉड एसएमएस के वर्सेस लाइक 700 सैंपल्स जो कि हमें यूजर से मिले थे जो कि नॉन फ्रॉड एसएमएस थे। तो ये वो वाला एग्जाम्पल है जहाँ पे हम फ्रॉड ही पकड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो है कम। उस केस में प्रिसिजन रिकॉल कर्व्स आर more important because they are sensitive to the class imbalance. अच्छा जनाब, so the bottom line is use precision and recall to focus on small positive classes. So when p y is equal to 1 is low, that is the prevalence of your positive class is low in the real world, and the ability to detect correctly the positive samples is our main focus. So the correct detection of negative examples is less important in the problem. ये सारी बातें जब true हो तो तब आप precision recall curves को use करें। Use ROC when both class detection is equally important. जब दोनों की डिटेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है, अब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड किसी एक में नहीं है, ओवरऑल देखना चाहते हैं कि भाई आपका क्लासीफायर अच्छा चलना चाहिए, क्लास इम्बैलेंस तो इत्तेफाक से हमारे डेटा सेट में आ गया फ़र्ज़ करें, उस केस में ROC कर्व्स आर मोर इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ व्हेन वी वांट टू गिव इक्वल वेट टू द प्रेडिक्शन एबिलिटी ऑफ बोथ क्लासेस। Again, use ROC curves when positives are the majority or switch the labels and use precision and recall. ये क्या मतलब है? अगर पॉजिटिव क्लास ज़्यादा प्रेवलेंट है और नेगेटिव क्लास कम प्रेवलेंट है, ज़्यादातर सैंपल्स आपके पॉजिटिव हैं और बहुत थोड़े सैंपल्स आपके जो हैं वो नेगेटिव हैं। मिसाल के तौर पर लिटरेसी डिटेक्शन करना चाहता हूँ मैं, आई डोंट नो, आपकी एक रिकॉर्डेड सैंपल से, और मैं लम्स में बैठ कर ये वाला पूरे का पूरा रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, और ज़्यादातर लोग मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कि सब लिटरेट हैं, और 4-5-6-10 लोगों को मैंने ऐसे इंटरव्यू किया जो मिसाल के तौर पर कम पढ़े हुए थे, यहाँ पर मैंने स्टाफ में से कुछ लोगों को इंटरव्यू कर लिया। अब मेरे सैंपल में ज़्यादा लोग वो हैं जो लिटरेट हैं, कम लोग लो लिटरेट हैं। सो लिहाजा यहाँ पर ये वो वाला केस है जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पॉजिटिव क्लास मेजॉरिटी के अंदर है, इस केस के अंदर ROC कर्व इज फाइन बिकॉज ROC कर्व इज अगेन लुकिंग एट बोथ क्लासेस इन आइसोलेशन। या अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं जो माइनॉरिटी क्लास है उसकी डिटेक्शन में, यानी लो लिटरेसी वाली डिटेक्शन के अंदर, तो फिर आप ऐसा करें, स्विच कर दें, आप उल्टा कर दें जैसे अभी ये पीछे हम देख कर आए हैं। उससे क्या होगा, आपकी पॉजिटिव क्लास माइनॉरिटी में चली जाएगी, नेगेटिव क्लास मेजॉरिटी में आ जाएगी, एंड अगेन योर प्रिसिजन रिकॉल कर्व्स वुड बी द थिंग टू डू। सो व्हेन द पॉजिटिव क्लास इज लार्जर, यूज द ROC matrix because the precision and recall would reflect mostly the ability of prediction of positive class and not the negative class, which will naturally be harder to detect due to smaller number of samples. ठीक है ना, दोनों precision recall आपके positives को देख रहे हैं, negatives को नहीं देख रहे, तो negative class ignore हो रही है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं, उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं, तो ROC कर्व्स यूज करें या उलट दें। If the negative class minority in this case is more important, we can switch the labels and use precision and recall curves, PR curves, and you'll still be fine. ठीक है, I hope this is clear. अच्छा जी, फाइनली एक बात मैं आखिरी करना चाहूँगा बिफोर वी फिनिश दिस डिस्कशन, कि आपके जो बायोमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं, लाइक योर थंबप्रिंट या रेटिना आइडेंटिफिकेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको कह रही हो कि ये वो शख्स है जो क्लेम कर रहा है, ये वही आइडेंटिटी है, यहाँ पर हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, एक और अंदाज से ग्राफ को बनाते हैं जिसमें हम फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट और फॉल्स रिजेक्शन रेट को ड्रॉ कर रहे होते हैं। आपका वर्टिकल एक्सिस जो है वो एरर्स है और आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेंसिटिविटी है, और हम ये कह रहे हैं कि द क्रॉस ओवर रेट, इसको CER भी कहते हैं, EER को हम CER भी कहते हैं। Your crossover error rate describes the point where the false rejection rate and the false acceptance rate are equal. CER is also known as the equal error rate. The crossover rate describes the overall accuracy of a biometric system. As the sensitivity of a biometric system increases, FRRs will rise and FARs will drop. Conversely, as the sensitivity is lowered, FRRs will drop and FARs will rise. अगर मैं यहीं रुक जाऊं और आपको कहूँ इस बात को समझें, तो मैं काफ़ी हद तक गारंटी कर सकता हूं कि आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा और आप अपना सर खुजाते रहेंगे और आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो ट्राई करके देख लें, वीडियो पॉज करें और समझने की कोशिश करें कि हमने क्या कहा, अगरचे आप पूरा लेक्चर सुन चुके हैं। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से अगर पॉज करके वापस आ गए हैं, तो जो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ वो है रिगार्डिंग द जार्गन या द नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जब आप बायोमेट्रिक सिस्टम्स की फील्ड में जाते हैं ना, तो सेंसिटिविटी का मतलब रिकॉल नहीं होता। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कैलिब्रेशन सेंसिटिविटी इक्विपमेंट की।
सो जिस इक्विपमेंट से, लेट्स से थंबप्रिंट रीडर से आप वो थ्रेशोल्डिंग करवा रहे हैं, सो बेसिकली सेंसिटिविटी इज सेइंग लो थ्रेशोल्ड, हाई थ्रेशोल्ड. So this is low threshold of acceptance. This is high threshold of acceptance. Low acceptance threshold, high acceptance threshold. तो अगर नहीं समझ आ रहा था तो इसमें आपका कसूर नहीं था, सिर्फ फील्ड बदल गई थी. इस ग्राफ का मतलब डिफरेंट था. दिस इज नॉट रिकॉल. अगर रिकॉल के साथ कोशिश करेंगे तो these graphs will not make sense. But with calibration नाउ वी नो कि अगर लो एक्सेप्टेंस है, यानी कि मिसाल के तौर पे थोड़ा सा भी फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है या बिल्कुल नहीं मैच कर रहा और आप कह रहे हैं मैच हो गया जी जाओ, तो इसका मतलब है आपकी फॉल्स एक्सेप्टेंसेस बहुत हाई होंगी, फॉल्स रिजेक्शंस हो ही नहीं रही होंगी. आप सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फॉल्स रिजेक्शन क्यों होनी है? अगर आप इस थ्रेशोल्ड को हाई करते जाएंगे, यानी इक्विपमेंट को सेंसिटिव करते जाएंगे, मीनिंग थ्रेशोल्ड हाई कर रहे हैं, अच्छा मैच होना चाहिए, मैचिंग थंबप्रिंट का स्कोर जो है वो कोई 20%, 30%, 50%, 70%, 80%, जैसे जैसे हाई करते जाएंगे क्या होगा, अब आप ज़्यादा लोगों को जो है वो कम लोगों को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, आपकी एक्सेप्टेंसेज नीचे नीचे जाती जाएंगी क्योंकि थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सेप्टेंस हाई होता जा रहा है, और आपकी रिजेक्शंस बढ़ती जाएगी. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉल्स एक्सेप्टेंसेस और रिजेक्शंस की. जब हमारा लो थ्रेशोल्ड था तो थी ही नहीं फॉल्स रिजेक्शंस, थी ही नहीं, फॉल्स एक्सेप्टेंसेस बहुत थी. लेकिन जब थ्रेशोल्ड हाई होता जा रहा है तो फॉल्स रिजेक्शंस बढ़ती जा रही हैं, फॉल्स एक्सेप्टेंसेस कम होती चली जा रही हैं. इवेंचुअली एक टाइम आएगा अब आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो जाहिर है फॉल्स एक्सेप्टेंसेस नहीं होंगी, और सबको रिजेक्ट कर रहे हैं यानी कि फॉल्स रिजेक्शंस आपकी बहुत हाई होंगी. सो इन दिस केस आपके सिस्टम का एक अच्छा कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट है द इक्वल एरर रेट और द क्रॉसओवर एरर रेट. ये वो जगह है जहाँ फॉल्स एक्सेप्टेंस फॉल्स रिजेक्शन के करीब आ जाती है. हम वॉइस बायोमेट्रिक्स और इस तरह के सारे सिस्टम में, डिफरेंट बायोमेट्रिक सिस्टम्स में ये वाले ग्राफ यूज़ करते हैं. यहाँ पर भी मतलब ये होता है कि हमारा फॉल्स एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू फॉल्स रिजेक्शन. इट शुड बी ऑल बी लो, सो लोअर इज बेटर. ठीक है, तो बस यहाँ पर एक बात याद रखनी है, इस किस्म के ग्राफ पढ़ते हुए ये अच्छी तरह समझ लें. और वो जो बाय द वे जो रिसर्च पेपर जिससे मैं ये ले रहा हूँ, जो नीचे मैंने दिया हुआ रेफरेंस, जाकर ढूंढ लें, उसमें मुझे रिकॉल का वर्ड कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, और ना ही ये कि सेंसिटिविटी से मतलब यहाँ रिकॉल नहीं है. तो ये ज़रा थोड़ा सा आपको अपने तौर पर समझना पड़ता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंट डोमेन्स में चीज़ों के मतलब बदल जाते हैं. ये आप मजीद सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दिस इज़ नॉट सेंसिटिविटी इन द रिकॉल सेंस, दिस इज सेंसिटिविटी इन द कैलिब्रेशन सेंस. ठीक है, सो authentication algorithms, ये आखिरी बात बस, all algorithms need to simultaneously minimize the permeability to intruders, कि intruder आ सकें, therefore they have to be demanding, and to maximize the comfort level therefore they have to be permissive. यानी अपनों को ही आप रिजेक्ट किए चले जा रहे हैं, सुबह से दफ्तर में जो आ रहा है हर एक का अंगूठा लगा रहा है, वो घुसने ही नहीं दे रहा अंदर, तो बुरा मानेंगे वो लोग, जाहिर है. तो ये कंफर्ट लेवल भी आपने हाई करना है, लेकिन चोर भी आ रहा है तो अंदर आने दे रहे हैं, दैट मीन्स कि परमिबिलिटी भी आपको कम करनी पड़ेगी टू इंट्रूडर्स. ठीक है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज द बेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम्स, एंड द मेजर ऑफ सक्सेस फॉर ओवरऑल प्रिसिजन ऑफ एन एल्गोरिथम इज एंड ऑफ इट्स यूजेबिलिटी इज द CER. ठीक है, द क्रॉसओवर एरर रेट. So I hope this is clear to you. These were all very important topics जिनकी आपको आगे जाकर मशीन लर्निंग में ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट एरियाज़ में. आज हमने काफ़ी तफसील से देख लिया है ताकि अगर इसकी जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आप अपने तौर पर इसको वहाँ पर मैप कर सकें और अच्छी तरह से समझ सकें. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं.